Good morning. Today we'll start again networking concept, and before I teach, I'll share a screen for you so that you'll come to know exactly what is the revised syllabus and also the terms which are going to be part of this syllabus for this year. So I'll share a screen for you and see if you are able to see that syllabus is here. In my previous class, Yes, sir. In my previous class, I have completed till satellite link. Okay, network devices will start today, and the networking devices starts with modem. Right from your childhood, you must have learned the modem definition, and beside that, RJ45 connector, Ethernet card, and router, switch, gateway, Wi-Fi card, etc. I will teach you. So we'll start with modem. Okay, so write definition for modem. Okay. So modem stands for modulation, demodulation. Modulation is the process of converting analog signal to digital, and demodulation is digital to analog. As we get signals in analog form, so modem converts the analog signal to digital so that computer can process it, and after processing it again converts the digital signal to analog. There are different types of modems. These are internal modem. Internal modems are fixed inside a computing device. Whereas whereas the external modem are kept outside and are connected to the computing device using cables. Now we have also Wi-Fi modems, fax modems, etc. The Wi-Fi modem works as router so that many devices can be connected wirelessly. बस इतनी डेफिनेशन बहुत है. Next definition will come here as इस बार की बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं इन्होंने. सिलेबस कम हो गया है, इस चक्कर में इन्होंने सारी बुक का सत्यानाश कर दिया है. अब समझ में नहीं आता कहाँ क्या दिया हुआ है. फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँ, शायद कहीं दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखता है तो फिर मैं अपनी मर्जी से डेफिनेशन में लिखूँगा. Just a minute.
कुछ क्लियर नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज योर RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर, ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन नेट से ही ले लूंगा। RJ45 कनेक्टर, RJ stands for registered jack कनेक्टर। वो जेरोक्स आर्किटेक्चर से ये सारी चीज़ें हैं। ये जो आपका दिखता है ना नॉर्मली, ये RJ45 कनेक्टर है। ये देखिए इस तरह से इसमें करके इसको पेस्ट किया जाता है, प्रेस किया जाता है, ठीक है। दिस इज RJ45 कनेक्टर, ओके। So I'll come to the definition part. RJ45 is a type of connector commonly used for Ethernet networking. Stand for registered jacks. It is a standardized interface. The 45 simply refers to the number of the interface standard. Interface standard. Each RJ45 has 8 pins, which means an RJ45 cable contains 8 separate wires. This definition is enough. (45) सिंपली एक नंबर है इंटरफेस स्टैंडर्ड का, इसमें डिटेल नहीं जा रहे। RJ45 जस्ट मैं देता हूँ डेफिनेशन से, इसके बाद देखना चाह रहा था कुछ और तो नहीं है। नहीं, बस सीधे एथरनेट कार्ड आएंगे। Noted. Next definition will come. Should I? Or you are still noting? लिख लीजिए, अच्छी बात है। आई एम वेटिंग। आपके इसमें जैसे कि द 45 सिंपली रेफर्स टू द, चाहो तो छोड़ भी दो, और जो कनेक्टर है 8 पिंस, ये ठीक है, इसमें लिख लें। मतलब आपको 2 to 3 लाइंस डेफिनेशन इनफ है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, उससे ज्यादा नहीं। Next definition, should I? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. So next point is where it is, Ethernet card. Ethernet कार्ड आपका जानते हैं ना, लैन कार्ड होता है जिसपे आपके ये पोर्ट्स होते हैं और इससे कनेक्ट होता है। So I will go straight away here. Ethernet कार्ड डेफिनेशन। अब आर्किटेक्चर भी देख लीजिए चाहे तो, इमेजेस। दिस टाइप ऑफ एथरनेट कार्ड होता है। यहाँ पे देखिए आपका RJ45 कनेक्टर लगता है, मेरा अगर कर्सर पॉइंट कर रहा है तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ और दूसरे पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। सो दिस पोर्ट जो है, दिस इज यूज फॉर RJ45 कनेक्टर एथरनेट कार्ड, ओके। सो विल कम टू द डेफिनेशन। ये लिख लीजिए, अभी 1 मिनट और इससे बेटर डेफिनेशन लिखती है तो मैं देख लेता हूँ, वैसे ठीक है। ठीक है, वैसे डेफिनेशन फिर भी विकी क्या कहता है।
ज़्यादा ही कह रहे हैं। Okay, so you write it. Ethernet card is the communication hub for your computer. It connects to a network using a network cable. Ethernet card also communicate one-to-one with another Ethernet card, allowing for peer-to-peer network connection. Peer-to-peer मतलब होता है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एंड सो ऑन। जैसे हमारे लैब में कंप्यूटर नेटवर्क है, तो जो केबलिंग हुई है उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट कंप्यूटर है वहाँ का केबल उसमें हुआ, फिर उसके आगे केबल बढ़ा के दूसरे में, एंड सो ऑन। सो पीयर टू पीयर नेटवर्क। अभी इसके बारे में और डेफिनेशन लिखवा देंगे अगर चाहोगे, तो बुक में होना चाहिए सिलेबस में, क्योंकि टाइप्स ऑफ जो टोपोलॉजीज हैं उसमें अलग अलग है। स्टार टोपोलॉजी, पीयर टू पीयर, बस टोपोलॉजी एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। सो आप इसे लिख लीजिए सिर्फ। एन एथरनेट कार्ड इज एथरनेट कार्ड द कम्युनिकेशन हब। आरा कार्ड भी लिख सकते हैं, इट्स अ कम्युनिकेशन कार्ड फॉर your computer connects to a network using a network cable. Ethernet can also communicate one to one with another Ethernet card. इतना भी चलेगा, जब छोड़ो पीयर पीयर सारी चीजें। इसको पहले लिख लीजिए, फिर देखता हूँ इसमें कुछ और। वैसे जेरोक्स वगैरह कुछ लिखा था। एन एथरनेट कंट्रोल इज कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू कंप्यूटर। ये भी अच्छी डेफिनेशन थी। इंटरफेस कंट्रोल इज द कंप्यूटर इंटरनेट कंट्रोलर। अच्छा, वही इंटरनेट कंट्रोलर बोलो, कार्ड बोलो, एक ही बात है। तो मैंने कंप्यूटर बस, ठीक है। NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, याद रखिएगा। NIC ये बेसिकली एथरनेट कार्ड कुछ और नहीं है, बल्कि एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, याद रखिएगा ये भी। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बस इतना काफी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी राउटर। पहले इसे लिख लीजिए, तो मैं आपको लिख सकूँ। नोटेड? Next definition is your. If you have noted, I will go for the next. Yes, sir. A router is a network device. Router, next definition. Is a network device that forwards data from one network to another. It acts, I repeat, forward data from one network to another. A router works like a bridge. ये डिफरेंस के लिए जरूरी है, लिख लो। A router works like a bridge but can handle different protocols. But can handle different protocols. इसी के नीचे ब्रिज लिख लो। A router works like a bridge but can handle different protocols. Bridge के लिए लिख लो, bridge is a device that links two networks together bridge can handle networks that follow same protocol. That follow same protocol. ब्रिज नहीं था तो भी मैंने लिखवा दिया, डिफरेंस में शायद कभी पूछूं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज गेटवे। A gateway is a network device
मैं डायग्राम अभी दिखा दूंगा आपको। अ गेटवे इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स dissimilar network it establishes an intelligent connection between a local network and external network with completely different structures। सच पूछो तो मैंने भी ये डिवाइस नहीं देखा था, बट जब मैं एक बार बीएसएनएल ऑफिस गया तब मैंने उनसे पूछा कि ये जो डिवाइस है ये कौन सी डिवाइस है, तो उन्होंने बताया सर ये गेटवे है और इससे जो नेटवर्क हमारे पास आता है और पूरे सिटी में जैसे लोकल में या कहीं पे भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम इसी डिवाइस को यूज़ करते हुए नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सेम जो डेफिनेशन का इतना इंटेलिजेंट होता है कि किसी भी तरह का नेटवर्क आता है उसे कैच करता है और उसको फिर किसी भी तरह के नेटवर्क में भी, चाहे डिफरेंट प्रोटोकॉल हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, ये सभी को एक्सेस करता है। सो आई विल शो यू सम डायग्राम हियर ऑफ दीज टर्म्स। सो आपका राउटर क्या है उसका देख लो। आजकल तो सिम के साथ भी अवेलेबल है इमेजेस। आप देखिए जो आपके घरों में आजकल लगे हुए हैं ये सब राउटर हैं, मेरे घर में भी है, आपके भी। सो ये सारे राउटर हैं। मॉडम भी जो हम यूज़ करते थे पहले वो भी एक राउटर था, तो अब जो आपके मॉडम कह लो, राउटर कर लो, ये सारे डिफरेंट राउटर्स हैं। ये शो करता है डिफरेंट पास 4 चैनल्स 5 चैनल्स। सो इससे स्पीड बढ़ती है। नॉर्मली वी गेट 4, ठीक है। सो 2 वाले भी बहुत सारी जगह पे है। नॉर्मली जो केबल नेटवर्क वाले वो 2 ही प्रोवाइड करते हैं क्योंकि रेट का बहुत फर्क है। गॉट इट। सो ये तो हो गया राउटर। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्रिज। ब्रिज नेटवर्क डिवाइस। ब्रिज नेटवर्क डिवाइस तो इस तरह से ये है, नंबर ऑफ, तो आपका जो हब और स्विच है उसको भी आप एक ब्रिज की तरह यूज कर लेते हैं। ओके तो सर मतलब जैसे जो अपने घर में ये प्लग्स होते हैं ये भी एक टाइप के ब्रिज ही है, मतलब जैसे जो 3 पिन्स और ये सब होते हैं। यूज कर रहे हैं तो वो एक तरह का ब्रिज का ही काम कर रहा है कि आपने एक लैपटॉप जोड़ा और एक दूसरा जोड़ा तो बीच में एक ब्रिज है। जो ये 2 कंप्यूटर इधर 4 पोर्ट है ना बेटा, तो 2 इधर जुड़ गया, 2 इधर जुड़ गए। ये जो बीच में डिवाइस वर्क कर रहा है, दिस इज योर राउटर एज वेल एज वर्किंग एज ब्रिज ऑल्सो। गॉट इट। यस सर। नेक्स्ट आ जाते हैं गेटवे नेटवर्क डिवाइस। सो ये गेटवे नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। नॉर्मली जो मैंने बीएसएनएल में देखा था ये ऐसा बड़ा सा गेटवे डिवाइस था, ठीक है। आजकल तो छोटे भी आ गए हैं। सो ये गेटवे डिवाइस है कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स कुछ भी मैनेज करने के लिए गेटवे यूज़ किया जाता है। सो पहले बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस आते थे इस तरह के और वो पूरा अंदर पूरा सिस्टम था उनका, मगर अब छोटे आ रहे हैं, काफ़ी पोर्टेबल हो गए हैं। ओके, सो विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या है? Ethernet card, router, switch, gateway, Wi-Fi card. Wi-Fi stands for wireless fidelity. Wireless fidelity. Wireless fidelity. A Wi-Fi card is either an internal or external local area network adapter आपके मोबाइल वगैरह में वाईफाई सिस्टम है वो इंटरनल है,
बहुत सारे दूसरे और भी डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक जहाँ इंटरनल है, लैपटॉप है एक्सेट्रा, मगर आप उसके अलावा वाईफाई डिवाइसेस बाहर भी यूज़ करते हैं एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल लोकल एरिया नेटवर्क अडॉप्टर। अ वाईफाई कार्ड इज आइदर एन इंटरनल और एक्सटर्नल local area network adapter with a built-in wireless radio, works on radio waves, radio and antenna, wireless radio and antenna। इनबिल्ड में भी एक छोटा सा एंटीना होगा जो कि आपको दिखेगा नहीं कि वो लंबा सा ऊपर खिंचा हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है, मगर वहां से एंटीना मीन्स जो कनेक्ट करेगा, कैच करेगा। वायरलेस रेडियो एंड एंटीना। और थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं, बुक में तो कुछ और खास नहीं है। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी, यू नो, वाईफाई डिवाइस। ओके, तो ये सारे वही फिर से वापस आ गए, वाईफाई ही हैं। डेफिनेशन में थोड़ी सी और डेफिनेशन में चाह रहा था। वाईफाई is a wireless network that allows devices such as computer, mobile and other equipment to interface with the internet। ये भी लिख लो, अच्छा रहेगा, जनरल सी डेफिनेशन है। प्लीज नोट डाउन दिस ऑल्सो, थोड़ी इस डेफिनेशन बढ़ जाएगी। यस सर। हमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं लिखनी है, आपसे फिर से बता दूं। और इन्होंने वैसे हमसे पूछा था वाईफाई कार्ड के बारे में, तो मैंने कार्ड वाली तो लिखवा दिया। अब उसी में अगर थोड़ा वाईफाई में एक्स्ट्रा कर ले तो अच्छी बात है कि वाईफाई करता है, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन और लिखना, अगर ये लिख लिया तो उसके बाद थोड़ा सा रुक जाता हूँ, 1 मिनट आप लिख लीजिए। बेटा आराम से चलना है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बिल्कुल इजी वे में सिलेबस कंप्लीट होगा आपका। मैंने बताया है कि जो टर्म 1 है उसका पोर्शन नेटवर्किंग तक ही रखेंगे, और नेटवर्किंग के बाद कुछ बहुत ज़्यादा सिलेबस में है नहीं। माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल 11th में पढ़ाई दिया था, और बाद में अभी रिवीजन करा के फिर इंटरफेस ऑफ माई एसक्यूएल एंड पाइथन है, फिर थोड़ी बहुत डेफिनेशन होगी, और स्टैक एक्यूज भी हटा दिया है इन्होंने। तो सिलेबस को काफ़ी शॉर्ट किया है इन्होंने। नोटेड। एक और लिख लो इसमें, द मोस्ट कॉमन वाईफाई कार्ड्स यूज्ड इन desktop computers are PCI Express। The most common Wi-Fi cards used in desktop computers are PCI Express। There is a PCI card slot on the motherboard to fit it। PCI card slot on the motherboard to fit it। PCI stands for क्या होता है? PCI card is a internal PCI stands for क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट। लिख लिया है, लिख लिया आपको? हाँ ये लिखा हुआ है, सॉरी। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। सर बट जैसे अभी जो मतलब ऐसे ग्राफिक कार्ड्स वगैरह और ये सब होते हैं, इनमें PCIe होता है, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है?
द पेरिफेरल कंप्यूटर इज ए लोकल कंप्यूटर बस फॉर अटैचिंग हार्डवेयर। आपने क्या पूछा? पीसीआई कार्ड फॉर ग्राफिक्स। सर वो एक्चुअली एक और होता है PCIe, मतलब वो एक्सप्रेस, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है? देख लेते हैं, मुझे क्या पता। पीसीआई कार्ड एंड पीसीआई डिफरेंस। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पीसीआई नोन एज पीसीआई एक्सप्रेस। ई हो गया ना एक्सप्रेस, तो एक ही है। PCIe uses serial enter instead of the old parallel PCI। यही है बस, कुछ फर्क नहीं है। ई मतलब एक्सप्रेस है, यस सर। ठीक है। ये देखो PCI और PCI एक्सप्रेस है, कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। PCI ओल्ड है, PCI न्यू है, दैट्स इट। ओके, कहाँ गया ये डिवाइस? ओ वाईफाई कार्ड हो गया। ओके, विल कम टू द नेक्स्ट वन, नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड टाइप बस। ठीक है, विल टेक दिस। ये आपके टोपोलॉजीज हैं, लिखिए टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। इस बात की बुक सच में कमाल की है, जिसमें अगर नेट नहीं हो तो फिर पढ़ाया ही नहीं जा सकता। आधी चीज़ें इसमें से गायब कर दी इन्होंने। इनको पता नहीं क्या लग रहा है कि सिलेबस, जबकि रिवाइज सिलेबस मेरे पास नेट से उतरा हुआ है, और इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें इन्होंने गायब कर दी हैं। कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को, एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिख रहा है। बाद में कहीं हो तो हो, नहीं है ये, मतलब टोपोलॉजी तक इन्होंने नहीं दिया है, दिख नहीं दी। ओके, दिख रहा है, ओके, यहाँ पर दिया है इन्होंने कलर से। ठीक है, लिखिए टोपोलॉजी। टोपोलॉजी स्टैंड्स फॉर, topology means, the topology means the pattern of interconnection of nodes. Topology means the pattern of interconnection of nodes in a network, in a network। किस पैटर्न में आपके नोड्स, या नोड्स का मतलब कंप्यूटर, नोड्स का मतलब प्रिंटर, नोड्स का मतलब कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस जो नेटवर्क में जुड़ी हुई है, दैट इज अ नोड। अगर मेरा एक सर्वर के साथ कंप्यूटर भी जुड़ा है, दैट इज अ नोड। एक प्रिंटर जुड़ा है, वो भी एक नोड है। सो द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड टोपोलॉजी। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज आर, The different types of topologies are bus, star, tree, यहाँ लिखा हुआ है, पैन, लैन, मैन, वैन। ये मैंने पहले बताया था क्या? पैन पर्सनल एरिया, लैन लोकल एरिया, डब्ल्यू एन वाइड, एम एन हाँ मेट्रोपॉलिटन। सर, आपने थोड़ा सा बस ऐसे फुल फॉर्म बताई थी, मतलब ब्रीफ क्या था, हल्का सा ऐसे इन डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया था। एक एक करके चलिए। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। मगर यही है कि आपका टाइम अप हो चुका है, फिर भी थोड़ा सा एक बस को ले लें। बस की डेफिनेशन लिख लो, फर्स्ट वन, बस टोपोलॉजी ऑल्सो नोन एज लीनियर टोपोलॉजी। इसका डायग्राम भी ध्यान रखना, भी मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको। लीनियर टोपोलॉजी, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, नॉर्मली कोएक्सियल। अब ऑप्टिकल भी आ गया है। नॉर्मली कोएक्सियल, कोएक्सियल, onto which आप उसके स्लैश करके ऑप्टिकल रख लिया फॉर बेटर स्पीड लिख लेना। कोएक्सियल के उसके बाद स्लैश करके, क्योंकि अब जमाना बदल गया है। अब तो अभी कोटा में तो हर जगह कोएक्सियल नहीं, ऑप्टिकल नहीं हुआ है, मगर दिल्ली एंड ऑल मैं गया था, वहाँ पर मैंने क्लासेस भी ली थी, तो पूरा A to Z ऑप्टिकल हो गया है। ओके, चेंज हो गई टेक्नोलॉजी। बुक में तो कोएक्सियल लिखा है, क्योंकि कोई बात नहीं। onto which various nodes are attached, the transmission travel
in both directions. And can be received by all other workstations. At each end, there are terminators. At each end, there are terminators. ताकि आपका वहाँ पे नेटवर्क बंद हो जाए, उसके बाद वो सिग्नल लीकिंग या कुछ और प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ पे एक टर्मिनेटर लगा के बंद कर देते हैं। ज़्यादा मैंने क्या पहले ही बताया, डिटेल नहीं जाऊँगा। अब आपके जो सिटी में केबल लगा हुआ है या बहुत सारी जगहों पर, स्कूल में भी हो सकता है, मगर हमारे स्कूल में तो स्टार टोपोलॉजी है, और जहाँ पर एक सिंगल लेंथ केबल पे, जैसे कि अपने आप केबल वाले से बोलते हैं भैया मेरे को केबल नेटवर्क चाहिए, तो वो क्या कहते हैं, लाइक मेरे घर के बगल में लुइस सर का घर है, सो व्हाट इट डज, फ्रॉम देयर इट टेक्स अ केबल एंड गिव्स मी द नेटवर्क, देन आफ्टर दैट मिस्टर गुप्ता जी इज देयर, तो गुप्ता जी को चाहिए, देन यू विल टेक अ केबल फ्रॉम माय प्लेस टू गुप्ता जी। इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये है कि लो कॉस्ट है, अगली क्लास में मैं डिफाइन कर दूंगा, लेस केबल लेंथ है, बट डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक केबल लेंथ अगर मान लो मेरे घर पे ब्रेक हो गई तो मेरे बाद आगे कुछ भी नेटवर्क नहीं चलने वाला। अंडरस्टूड? और इसमें एक ही केबल लेंथ पे सीक्वेंशियली इन ए लीनियर फॉर्मेट, इसलिए लीनियर टोपोलॉजी भी बोलते हैं, कनेक्ट करते चले जाते हैं। सो इसकी एक डायग्राम देख लो, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको बनाना भी पड़ता है, एग्जाम में पूछते भी हैं, डायग्राम ऑफ लीनियर टोपोलॉजी बोलो या बस टोपोलॉजी, बस लिख दो, लीनियर बोलो या बस टोपोलॉजी। ये बस टोपोलॉजी एक सिंगल केबल लेंथ है, ये सर्वर हो गया, यहाँ से कनेक्ट होते गए, ये प्रिंटर भी हो सकता है, डिवाइसेस, नोड, टर्मिनल्स, ये सारी चीजें, ये बस टोपोलॉजी। समझ में आ रहा है? केबल लेंथ बिछा दी जाती है, मेरे घर में हो गया, ये लुइस सर के घर में हो गया, ये गुप्ता जी एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? और यहाँ पे जब एंड होता है तो यहाँ पे एक टर्मिनेटर लगा देते हैं, सो दैट यहाँ पे नेटवर्क खत्म हो गया। ये टर्मिनेटर जैसे यहाँ इन्होंने शो किया, समझ में आ रहा है? हैव यू अंडरस्टूड? यस सर, यस सर। केबल इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, अलग अलग कंप्यूटर या नेटवर्किंग डिवाइसेस, प्रिंटर कुछ भी बना के इसको अटैच करके दिखा देना, एक सिंगल केबल लेंथ पे, दोनों साइड में कहीं भी कर सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप इधर भी कर सकते हैं, या दोनों कर तो अच्छा लगेगा। एंड देन okay, we'll meet in the next class. Till then, goodbye. Have a nice day. थैंक यू सर।